Okay. So, how is the preparation going on? About what? Let's get going. Today we are going to learn men's croquis. But here in men's croquis, I have decided to show you the one thing is that the revision of last one what we did, but in a little different way. And इसी का एक हम advanced side pose बनाएंगे men's का, और उसको देख के आपको और काफी poses आ सकेगी. So, in order to start, I'm going to make my guidelines first. So अभी इसमें आज मैं जो guidelines बनाने वाली हूँ, those are only for the major guidelines. Just what is the meaning of major guidelines? Major guidelines as in only the guidelines which will guide me for my entire drawing. So that means the chin line, the shoulder line, and the waistline, the hip line, such lines only I will draw. So first thing I'm going to title it nicely. आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कर सकते हो. For today's session, as I mentioned on the message, that last 15 minutes are going to be a round that wherein I'll be answering your queries. If you have anything related to your assignments, I will go through your total list of assignments, what exactly assignment you have to submit. So today's session is more of going to be about the revision of what we did throughout. Are we good on that, Seema ji? Yes. या कीप आंसरिंग मी. ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ. ऐसा ना हो कि मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ. Ma'am, your voice is breaking. What Your is voice breaking? is breaking. Voice is breaking. My voice. Yes. Yes. Is it better now? Yeah. It's now. Yes, it's better now. Okay, I'll hold the mic close to my mouth. Okay, चलो अभी let's have a quick revision men's का, क्योंकि I have seen people are not really good in the men's, so मुझे men's का सिखाना है आपको एक proper not the सिखाना है but एक revision देनी है men's का front, और उसी men's का हम side बनाएंगे क्योंकि which is something going to be useful to you. तो मुझे आप बताओ men's में proportion में how do you follow the proportion for the men's? Chin is on 1. After that shoulder is on 1.5. I can't hear anything, ma'am. Your voice is fully breaking. सीमा जी, ऋत्विक, कैन यू हियर मी? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपके साइड में तो मुझे वो थोड़ा इंटरनेट का इशू समझ में आएगा. कैन यू हियर मी और नो? Yes, ma'am. I can hear you. सीमा जी, सीमा जी, इनके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है. सीमा जी, हाँ उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है. I'll make the lines. ऋत्विक, मेंस में बस्ट अपेक्स कहाँ पे आता है? बस्ट लाइन कहाँ पे आता है? 214. Then we'll make the waist, which is 314. The proportion is as similar as the male female one. Only thing is the structure changes.
So I'm drawing the waistline, which is on 314. Then I'll be drawing the hip line, which is on 4. ये आप जब भी लाइंस ड्रॉ करोगे, मार्किंग्स करोगे, मेक श्योर आप राइट पॉइंट पे ही कर रहे हो, बिकॉज इफ दिस गोज रॉन्ग एवरीथिंग इज गोना गो रॉन्ग. And one more tip I want to give you all, that make yourself expert into finding out 1 inch. 1 inch आपको बिना स्केल के फाइंड आउट करना आना चाहिए, बिना स्केल के, because that will help you to divide furthermore. This session will give you the more clarity about male features, because I can actually see from your assignment submission that you're not that good into the male features. So I want to make sure that आप at least front अच्छे से बनाओ और side pose हो वो भी अच्छे से बनाओ, so that you will have no problems in the future while making the males. Because even सीमा जी आपने जो भेजा या ऋत्विक ने जो भेजा उसमें आपने काफी फीमेल मेल फीमेल मिक्स वर्जन बना दिया है, which is not acceptable. No, I did not share that one. Actually, I did not do only. Okay, so I think Lakshmi has sent it. काफी the shape जो है ना काफी गलत हो चुका है उसमें. So I thought that rather than going on the very next level, I'll show you the first this thing very well one more time, and I'll show you one side pose. बाकी का सब जो भी proportion था, if the style of making the poses is as similar as female, लेकिन आपको shape समझ में आना बहुत जरूरी है. जो हमने लास्ट सेशन में फीमेल का एंगल्स बोन लाइन से जो हमने किया था वो हम एक करेंगे यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल बॉडी. That's his chest. It's 10 head. Yes, it's 10 head. आप 10 head Okay. करो, 12 head करो, कोई भी head करो, but only thing what you need to understand is the structure. So in 10 head, as the measurement we have seen for the female, same measurements remains. आपको अब तक by heart हुए होंगे. Chin line comes on 1, Yeah. shoulder on 1.5, chest 2/4, waist 3/4, hip 4, crotch 4/4, knee 6.5, ankle 9, floor length 10. It's as simple as that. Very simple. Are you clear on this? The measurement part. अभी हम इसको लेके आगे we are going to make the structure. Okay. So let's do it. So what we did for the male, हमने shoulder से, जैसे मैंने पहले भी कहा था, woman figure is the hourglass figure. So it is like shoulder and hips are same size and the waist is small, but male में वैसा नहीं होता. Usually male with the broad shoulder are the most attractive and the charming, क्योंकि वो body muscles अच्छे दिखे तो वो काफी अच्छे लगते हैं males. So I'm going to give the shoulder 1. I'm going to give the waist half inches out on both the sides. And on hips, I'm going to make hips the middle size of shoulder and the waist. So shoulder मैंने लिया है 1, waist मैंने लिया है half inch out. So obviously I'll keep hips 3/4 inches out. So I can feel my this body is quite going to be in shape.
and the rest remains the same. बस only on the hip part I'm going to mark a center of 3/4. ये जो 3/4 मैंने draw किया है, this is 1 inch, 1 inch. Waist is half inch, half inch. This is 3/4 inches, 3/4 inches. अभी 3/4 का मैं half बनाऊंगी. So 3/4 का half approximately it comes to, it's, let me see, here. Sorry, 3/4 is here. 3/4 ka half 1 centimeter, 1 centimeter. Now I'm going to make a structure wherein both the legs are resting on the floor. So I will make this bone line. So this is my bone line. I got my bone line ready. So abhi इसी के ऊपर I will start making my structure. So the very important thing about the male body is when we draw the neckline, it's broad. That's my neckline. So I'm going to make a broad neckline. Before that, I'm going to join all the parts. I'm joining all the points just to make sure that I go on the right path. मैंने आपको लास्ट सेशन में सिलेंड्रिकल कुछ चीजें बताई थी. ह्यूमन बॉडी इज अ सिलेंड्रिकल. तो यही फॉर्मूला इसमें भी होता है. But just to make it very simpler, I am actually not making those cylinders because I don't want to make it very complicated for you all. So यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे थोड़ा सीमा जी शायद आप मुझे सवाल पूछ रहे थे लास्ट टाइम आपने यहाँ पे डिवीजन कैसे किया था. सो एज आई सेड, मैंने हिप का सेंटर लिया है 3/4 का, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. तो उसका मैंने हाफ करके डाला है. तो अभी मेरा डिवीजन एंकल पे होगा क्योंकि हमारे पैर एंकल से ऐसे खुलते हैं, एंकल से ऐसे खुलते हैं, राइट. सो इसके लिए मेरा डिवीजन एंकल पे होगा. और एंकल पे व्हाट आई विल डू, ऑन द बोथ द साइड्स आई विल गो 1/4 इंचेस आउट. और फ्लोर लेंथ पे आई विल गो आउट बाय half inches. You can go approximately. Don't keep yourself restricted. Follow your instinct. आप जब एक बॉडी शेप बनाना सीखते हो, so always try and follow your instinct. आपका इंस्टिंक्ट सुनो. मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर नहीं जाना, उसके बाहर नहीं जाना, नहीं. आपको लग रहा है ये शेप राइट है, so do that. और ये सब कब होगा, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे. एंड सीमा जी, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा था, एक चीज मैंने अभी जस्ट कही, वो आपको बहुत काम में आएगी. दैट इज लर्न टू ड्रॉ 1 इंच. जैसे फॉर एग्जांपल अभी सपोज दिस इज 1 इंच, राइट. सो अगर मुझे विदाउट स्केल भी बनाना है ना, आई शुड बी एबल टू डू इट like this. I approximate like this. This is my 1 inch, or else let's see, this is my 1 inch. So this is matching to this. So I know how to draw 1 inch. The benefit of knowing 1 inch is that when you do the shapes, आप जब अलग अलग angles, when you do the angles, first thing what you do is you mark your points. So you just go approximately. You don't make lines. ये लाइन बनाना ये जूनियर केजी सीनियर केजी का काम हो जाता है तब. ये अभी आप जूनियर सीनियर केजी में हो, अभी आपको अगले स्टैंडर्ड में जाना है, तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए. करेक्ट. यस. चलो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो या देयर इज वन लाइन इज मिसिंग हियर, द wrist. I'm going to rest it on the wrist. थोड़ा सा ब्रॉड बनाते हैं because I want to make a masculine man. बिगाड़ना बिल्कुल, भैया बोले वो इस करते हैं. Male face is always like a squarish, not like a female. ज्यादा चिक वगैरह नहीं बनाने हैं हमें.
made this face. And very other important thing is मेल का जो नेकलाइन होता है that's quite broader. So मैं ऐसे काफी broad look दे रही हूँ कंपेयर टू द फीमेल. फीमेल का अगर मुझे बनाना होता तो मैं इतना छोटा लेती थी, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे मेल बनाना है तो आई एम टेकिंग इट ब्रॉडर. अभी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना काफी फ्री हैंड. We should not. बोलिए. Sorry. We should not measure neckline for male this illustration. मेल इलस्ट्रेशन के लिए आप मेजर कर सकते हो. दैट इज गोना बी 1/2 of centimeter. But as I said कि everything don't depend on the scale and the measurement. Make yourself habitual. Okay. You know, जैसे अभी लक्ष्मी पहले सेशन में पूछ रही थी कि वो स्क्वायर के कितने बाहर जाना है फेस के लिए. कोई जरूरत नहीं है. फॉलो योर इंस्टिंक्ट. अभी आपको पता है एक फीमेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल का प्रपोर्शन कैसा होता है, मेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेल का प्रपोर्शन कैसा होता है. सो फॉलो योर इंस्टिंक्ट. अभी मैं आपको ज्यादा करके ये जो प्रैक्टिस दे रही हूँ, ये आई एम ट्राइंग टू गिव यू द फ्री हैंड प्रैक्टिस, कि आपको एवरी टाइम यू डोंट हैव टू टेक स्केल एंड डू इट. मैं आपको फ्रीलांस बता रही हूँ ये कैसा होना चाहिए, सो दैट फ्रीलांस में क्या होता है, अच्छा शेप डेवलप हो जाता है. गेट इट. अभी मेल में क्या होता है, एज आई सेड, नेकलाइन, फीमेल का नेकलाइन द सेंटर आता है, मेल का थोड़ा सा ऊपर होता है, स्लाइटली ऊपर. सो आई एम टेकिंग इट स्लाइटली ऊपर. एंड मेल के शोल्डर्स आर ऑलवेज, फीमेल के शोल्डर हमने ऐसे बनाए थे, मेल के शोल्डर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं. That's the difference between male and female. So मैं मेल का ये शोल्डर बना रही हूँ. यहाँ पे मैंने ये शोल्डर बना लिया. ऋत्विक, are you clear till here? Yes, ma'am. Okay. अभी इसमें मैं आपको एक स्टेप ऐसा बताती हूँ कि आपको आर्म्स आने चाहिए. आई एम डायरेक्टली गोइंग आर्म्स. आई एम डूइंग आर्म्स क्योंकि इसके बाद इसी शोल्डर के शेप को फॉलो करके मैं आपको आर्म दिखाती हूँ. तो मेल के आर्म हम कैसे करेंगे? सीमा जी, आपको सर्कल का फॉर्मूला अच्छे से समझा था, राइट? तो मैं यही सर्कल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रही हूँ. Yeah. मैंने एक यहाँ पे सर्कल बनाया रफ, जस्ट माय गाइडलाइन. Only for male this thing, or for Yeah. female also we can try this. ना ना ना, फीमेल को मसल दिखाओगे क्या आप? सीमा जी. Okay, you're showing muscle. I thought arm. You're giving that arm shape. नहीं, Oh, नहीं, okay, नहीं. okay. मैं आपको मसल्स इसके लिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको वो मसल्स का फॉर्मूला अच्छे से समझा था, तो मैंने सोचा ये आपको अच्छे से समझ में आए. क्योंकि आप या फिर वो लक्ष्मी ने भी जो असाइनमेंट भेजा था जिसमें उन्होंने मुझे काफी हद तक फीमेल ही हाथ भेजे थे बना के, तो वो देख के मुझे लगा दैट आई शुड रिपीट दिस. क्योंकि आप पोजेस बना लोगे अलग अलग, लेकिन ये आपको आना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने अभी इनके आर्म्स भी बनाए हैं, काफी ब्रॉड बनाए हैं आर्म्स. सो आई एम गोइंग टू जस्ट स्लाइटली रेज दिस ऑफ. यू विल सी, मैं अभी ये सर्कल हटा रही हूँ, सो यू विल सी द डिफरेंस. थोड़ा सा यहाँ पे भी, जस्ट कम लिटिल डाउन. ये जो वर्कआउट करने वाले गाइज होते हैं उनका आप देखोगे ये शोल्डर ऐसे यहाँ पे बेंड होता है स्लाइटली. दिस इज ऑल द ऑब्जर्वेशन व्हाट आई एम डूइंग. Same thing this side, same structure. I'll follow this side. आप जब फीमेल करोगे आपका हाथ फीमेल पे इतना बैठेगा कि आपको मेल करते वक्त लगेगा कि ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन. बट देन
मेल का इज जस्ट दैट कीप इट ब्रॉडर एंड कीप इट वेरी स्ट्रेट लाइंस। थोड़ा भी यहाँ पे देखो कर्व आ गया, खराब हो गया शेप। कर्व आना आपको अवॉइड करना है, कर्व आना नहीं चाहिए। इसके पाम्स भी अगर आप करोगे तो पाम्स को भी काफी संभाल के आपको डालने हैं। काफी डिस्टेंस रखना है। कैन यू फील इट? एक मेल का जो बॉडी होता है दैट आई हैव फॉर्म्ड। अभी इसके ऊपर आई विल डू माई रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक आई वांट टू मेक द चेस्ट एंड द वेस्ट। सो चेस्ट के लिए दिस इज द एपेक्स, सो इसमें आई विल ऐड द स्क्वेरिश लाइन। So this is just a guideline, but I'm going to make it little curve. The shape of the hip, the shape of the waist. अभी यहाँ पे कभी पॉइंट नहीं होता मेल में, यू हैव टू ऑलवेज टेक इट लिटिल स्ट्रेटिश। यहाँ पे स्ट्रेट बनाने की कोशिश करो, पॉइंट कभी मत बनाना। Now the hip part also, don't make it curvy, make it little straight and play with your straight lines. थोड़ा मैस्कुलिनिटी हमें डालना है, इसलिए हम ज्यादा स्ट्रेट लाइन का ही काम कर रहे हैं। एंड वन अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैंने इनका जो काफ बनाया है पैरों का, वो मैंने काफी बड़ा साइज में बनाया है। Similarly this side. What is your son doing? Actually, I have a Rangoli competition. So my elder son is doing that. So he's telling, tell Bhaiya to help. Even I want to do. When is the competition? कब है ये? Here I'm giving little squarish look because before 14, before, I mean, we have to submit it before tomorrow. By tomorrow, we have to submit it. You're going to make it in your balcony or something? Sorry? आप आपके balcony में वगैरह बनाने वाले हो? No, I'm doing on my first floor. First floor. It's empty, so we are doing there. हाँ, that's nice.
There you go. ये सर्कल का फॉर्मूला करो तो आप मसल्स काफी अच्छे से डेवलप कर पाओगे. मैंने उसके काफी एप्स दिखाने की, I've given the apps to the body. 6-pack. 6-pack, yes. Ridvik, you have 6-pack? No, ma'am. You should have 6-packs, na Ridvik? हमारा ऋत्विक काफी सिंपल है. There you go. काफी male structure has formed. Yeah, say. Near the shoulders, we have to raise the shoulders. Yeah, like this. Actually, मैं जो okay, that's what मैं जो try कर रही हूँ वो उसमें ऐसे muscles जो है वो गिर रहे हैं, ऐसे वो cleanly नहीं दिख रहे हैं. तो आपको उसको गिराना नहीं है, आपको उसको उठाना है. Then we have to take the shoulders a bit up. Up, yeah. शोल्डर्स अप लेने हैं. और आपको याद रखना है कि शोल्डर और नेक है ना हमारा काफी नियर जाता है. नेक इसमें एकदम सेंटर से कट नहीं होता, ऊपर जाता है. यूजुअली हमारा नेकलाइन हम लोग शोल्डर और चिन के बीच में लेते हैं ना, थोड़ा उससे और ऊपर जाता है, 1.8 इंचेस ऊपर. दिस इज माय नेकलाइन, नॉट दिस इज माय नेकलाइन. अभी इसमें और आपको प्रॉपर एप्स दिखाने हैं तो देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. आप इसमें ये ऐसे स्ट्रक्चर डाल सकते हो, एंड दिस स्ट्रक्चर विल डिफाइन दिस बॉडी की, यू नो, देयर आर दिस एप्स. जस्ट ओनली वन टिप इज दैट कि इसका बॉडी ऐसे पूरा कर्वी कभी मत बनाना. कर्व बनाओगे तो वो फेमिनाइन हो जाती है. मेक इट वेरी रफ. जितना आप उसको रफ लुक दोगे उतना वो रफ दिखेगा. काफ भी काफी ऐसे चौड़े दिखाने हैं. Just while doing the men's, just make sure that you are keeping this in your mind that you're doing male. क्योंकि फीमेल करने जाओगे तो ये शेप ऐसा 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 हो जाएगा. नहीं, हमें ऐसा शेप बिल्कुल नहीं चाहिए. हम मेल्स का करें ये माइंड में रख के आपको करना है, सो दैट देन ओनली यू विल गेट दिस काइंड ऑफ मेल का शेप. स्टर्डी लुक जिसे बोलते हैं. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अचीव. Didn't put the title. Ten head masculine. मैं अभी इसका एक साइड बना के दिखाती हूँ आपको. अगर आपको इसका शेप अच्छे से समझा है, इसी शेप को हम इसमें फॉर्म करेंगे. सो साइड मतलब जैसे हमारा ये फ्रंट का फेस हो गया. साइड फेस कैसे होना चाहिए? आई शो यू फर्स्ट द फेस ड्राइंग. इसी के ऊपर मैं आपको फेस का ड्राइंग बताती हूँ. अभी आपको थोड़ा लगेगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट ये बहुत ही आसान है. आपको इसके लिए सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस.
और एक आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसे कौन सी चीजें करनी है। मैं अभी उस साइड, मतलब द पर्सन इज लिटिल ट्विस्टेड टू दिस साइड, ऐसे वाला एक पोज बना के आपको बताती हूँ। आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी क्विकली। मतलब आपको एक, आपसे वॉच कीजिए कि हाउ आई एम डूइंग इट, सो दैट यू विल गेट टू नो दैट हमें फ्रीलांस में कैसे बनाने हैं। ये फ्रीलांसिंग का जो भी है आपको अगले अगले लेवल में है, बट स्टिल यू नीड टू नो following the measurement how you have to do the freelancing. So this is my one chin line. My shoulders. Let me just do it. This is my center line. So, and this is my waistline. So this side is going to be more and this side is going to be जैसे अगर इंसान अगर उस साइड में टिल्ट करके खड़ा है, ही वांट्स टू शो हिज शोल्डर वन साइड ऑफ, आप वन साइड कैसे दिखाओगे प्रॉपरली, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। स्केच बना के फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। This is my chest line. This is my line. सीमा जी एकदम शांत मत बैठिए, कुछ बातें कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अकेले से बात कर रही हूँ। Actually, आप I कुछ think कर I रहे हो। have some network issue. I'm not able to. No, I'm not doing anything. But yeah, even I have sent message to you. I'm not able to hear anything. Maybe I have network issue or what? ओ आपको नेटवर्क इश्यू होगा क्योंकि ऋत्विक कैन हियर मी वेरी वेल। Okay, yeah, that's what. Just now I dropped a message also. Yeah, I'm not able to hear. ओके कोई बात नहीं, आप अभी फिर देखने का ही काम करो, आप समझ जाओगे मैं क्या बना रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक अ साइड फेस, मैं एक साइड का पोज बना रही हूँ। इसमें दिस इज द लेग, आई एम गोइंग टू दिस आई एम डूइंग जस्ट टू गिव यू द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीलांस। आप फ्रीलांस में कैसे बनाओगे। मैं इसमें कोई साइड लाइन नहीं बना रही हूँ, कुछ नहीं बना रही हूँ, बिकॉज मैंने ये बॉडी का शेप सीख लिया अच्छे से, राइट। तो मैं इसमें कन्वर्ट करने की अभी आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू दैट प्रॉपर मैस्कुलाइन फॉर्म। Ridvik, watch carefully how I'm drawing my lines for the masculine figure, because this is not the Yes, ma'am. female. This is not the female, क्योंकि you were trying your best, right? I could sense that कि you need to know this more. फीमेल में हमने 3 सेशन किए, तो 3 सेशन में आपको वो शेप्स वगैरह काफी क्लियर हो चुका।
लेकिन मेल में थोड़ा सा आपको ये जो शेप्स होता है इसके ऊपर हाथ करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता होगा. दैट्स व्हाई आई फेल्ट दैट वी शुड डू दिस. See how the bone lines are following. I'm going to follow the bone lines and I'm going to make the structure. इसका हाथ पीछे गया है, so it should be up little. ओहो, रिकॉर्डिंग का याद नहीं दिलाया आपने. रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रह गया इसका, बट स्टिल यू कैन सी. It's it's अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, थोड़ा रिकॉर्डिंग चला गया इसका. okay. But it doesn't matter Okay. now, as long as what I just said, that you have to see the video and you have to practice. And ज्यादा करके जितना आप अच्छे से उसको स्ट्रेट लाइन देने की कोशिश करोगे ना, आपका हाथ याद रखना मेल के लिए हमेशा आपको एक माइंड सेट ही बनाना है कि आप मेल बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ही चलना है. स्ट्रेट 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 करना है. जैसे अभी कर्व्स के अगर फीमेल को होता तो मैं ऐसे कर्व्स देती, लेकिन नहीं, मुझे मेल का देना है तो आई एम जस्ट डूइंग इट दिस वे. और फ्री हैंड करने की कोशिश करो, बिल्कुल यूज मत करो. आपको कुछ स्केल पेंसिल यूज करनी मत करो, यूज फ्री हैंड करो. There you go. It's ready. थोड़े से कट्स जो होते हैं वो मैंने अच्छे से डाल दिए हैं. That's it.
थोड़ा मेल का जो साइड का वर्जन होता है, ये फ्रंट, एंड दिस इज लाइक हिज लिटिल पोज आई हैव ट्राइड टू क्रिएट इट दैट ही इज लुकिंग दिस साइड। सो यहाँ पे मुझे कुछ डिटेलिंग होंगे ड्रेस के, सो दैट आई कैन इनपुट। तो ऑन दिस नोट में देखो, इसमें ना, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, किसका है, तो फेस का। फेस का एंगल मैं आपको ये फिर से बना के दिखाती हूँ। फेस का एंगल जो ये पूरे बॉडी शेप को अच्छे से डिफाइन करेगा। सो मुझे चाहिए कि वो इंसान उस तरफ देख रहा है, उस तरफ देख रहा है। सो व्हाट आई डू, आई फॉलो दिस लाइन, चिन लाइन। आई मेक माई चिन फर्स्ट, आई गो लिटिल अप हियर, like this. And इसमें position में, as I said, the eyes are in the center. That will define the positions of your head and the hair and everything. Here you go. थोड़ा सा shoulder drooped. शोल्डर हमेशा देखना मैंने ऐसे क्रॉस में लिया है, ये मेरी शोल्डर लाइन है, ये ऐसे लिया है शोल्डर। इसको रेस करके मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। थोड़ा आपको ये जब तक आपको लगता नहीं है कि वो आपको एक जो शेप चाहिए वो अचीव हो रहा है, तब तक आप ये R&D कर सकते हो ऐसे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आप जितने भी इलस्ट्रेशन देखोगे ऑनलाइन, एक गो में कोई नहीं बनाता। दे ऑल ट्राई टू डू ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स एंड देन दे अचीव देयर लुक। तो उसको हम फास्ट फॉरवर्ड में जैसे इसको दिखा देते हैं कि कैसे फटाफट फटाफट करके उन्होंने लुक अचीव किया है। There you go. That's ready. So, अभी इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक फ्रंट देखा, एक हमने एक साइड का 3/4 बोल सकते हैं वो देखा है। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको इसका, अभी आप फ्री, आपके पास टाइम है ना अभी काम करने के लिए, कि आपको कुछ और काम है? आप दोनों बना सकते हो? This one or the side one, both. कोशिश करो ना, आप कोशिश नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगी कि आपको आता है नहीं आता है? Yeah, you send, I'll try. यस, आई एम गोइंग टू सेंड यू। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कोशिश करके एटलीस्ट इसको देख के भी अगर आप कुछ बना लो ना थोड़ा बहुत, तो भी मैं समझ जाऊंगी और आपको भी अच्छा हाथ आएगा। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, कि ये आपने जहन में बिठा दो कि आप मेल बना रहे हो, मेल बना रहे हो, तो मेल बना रहे हो, ये जब आता है दिमाग में, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है आपको ज्यादा करके स्ट्रेट लाइन से ही काम करना है। Yes. ठीक है, मैं आपको इसकी फोटो भेज रही हूँ सो दैट यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन मेक इट। थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। मैं आपको इसकी फोटो भेज रही हूँ, प्लीज रेफर करो। और सीमा जी, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है सर्कल का, क्योंकि आपको सर्कल के फॉर्मूले से काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो आई एम सेंडिंग दिस पिक्चर एंड विल मीट एट, कितना टाइम लगेगा आपको ये करने के लिए? टाइम तो लगेगा, बट व्हाट आई वांट इज half an hour. ठीक है, सो 4:30, 5 o'clock। ऋत्विक, ऋत्विक, आर यू गोना ट्राई मेकिंग दिस? क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेल का बनाना सीख गए हो। अगर आप ये करते हो तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने मेल भी अच्छे से बनाया है।
ठीक है, आधे घंटे में कोशिश करोगे बनाने की। विल मीट एट 5 o'clock एंड आई वांट टू सी दिस स्ट्रक्चर। मैं इसका आपको फोटो भेज रही हूँ, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो और वैसे शेप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ओके मैम। गाइस, सी यू एंड ऑल द बेस्ट। आई एम सेंडिंग यू द पिक्चर। सबसे पहले जो चिन का पॉइंट है उसको स्ट्रेट लाइन दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए छोटी सी, क्योंकि वो वी दिख रहा है ना, हमें वी नहीं चाहिए। उधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, चिन का शेप जो हम बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके उसको साइड में वी वी दोनों साइड में वी बना के ऊपर लेके जाके उसको कवर बंद कर दीजिए। हेड का जो शेप है ना आपका थोड़ा सा छोटा यस। है और इट हैज टू बी लिटिल ब्रॉड और मैस्कुलाइन ओके होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन से फॉर्म कीजिए। ओके, या ओनली दैट वी शेप आई हैव टू करेक्ट, और वी फेस ही शेप और पूरा हेड करेक्ट को और करना है। ऊपर लीजिए, वी शेप और हेड को और ऊपर खींचिए। हेड इज टचिंग टू द ओनली अ बिट इट्स डाउन। हाँ, नहीं, ऊपर टच कीजिए। या जस्ट अ सेकेंड। ओके। और वो 1 इंच है क्या? इज इट 1 इंच? यस यस इट इज। ओके, तो उसको ऊपर खींचे तो शायद वो बड़ा दिखेगा, तो छोटा लग रहा है क्योंकि। नंबर 2 बताओ, दूसरा आगे। यस यस मैम। नंबर 2 आपका जो नेकलाइन है उसको और ब्रॉड कीजिए, बहुत ही पतला बनाया है। एज आई सेड मेंस का नेक ब्रॉड होता है, मेक इट लिटिल ब्रॉडर। और उसको बिल्कुल कर्व ना कीजिए, स्ट्रेट यस। लाइन खींचिए। ब्रॉड बना के आपका कैमरा ऑन कर सकते हो आप, सो दैट यू कैन जस्ट शो मी ऑन एवरी स्टेप व्हाट यू हैव डन, यस यस जस्ट अ प्लीज। सेकेंड। ओके, वेट या श्योर। ओके, कैन यू सी इट मैम? हाँ, अभी अभी मुझे ठीक से दिख रहा है। अभी मेल का फेस एकदम परफेक्ट आया है। आपने जो शोल्डर की लाइन बनाई है उसे क्रॉस किया है, आपने स्ट्रेट बनाया है। अच्छा, अभी एक काम कीजिए, जो शोल्डर की लाइन है ना उसको यस। स्ट्रेट लाइन में अपवर्ड कर्व में ऊपर लीजिए। अपवर्ड कर्व समझते हो? आपका थोड़ा इनसाइड है, थोड़ा और ऊपर स्ट्रेट लाइन में डालिए। लेफ्ट साइड का जो शोल्डर है ना उसको थोड़ा और ऊपर ओके, कीजिए दिस कर्व को। पार्ट। हाँ हाँ, ये पार्ट और ऊपर होना चाहिए। ओके ओके मैम। दोनों साइड, इस साइड में कीजिए, लेफ्ट साइड में कीजिए। यस, थोड़ा सा ड्रूप डाउन। यस, एंड द राउंड, परफेक्ट। अभी इस साइड का भी वैसे ही कीजिए। यस। मतलब शेप समझ रहे हो ना, ऐसे अपवर्ड कर्व आता है, नीचे का कर्व बिल्कुल नहीं होता। नीचे का कर्व फीमेल में बनाते हैं हम, मेल में हमेशा अपवर्ड कर्व बनाते हैं। Okay, actually, I did not get from that time the same problem. I ऊपर से even नीचे, asked you नहीं this. नहीं, ऊपर से We नीचे should स्लैंट, स्लैंट होना चाहिए। अभी भी आपका फीमेल की तरह आया है, स्लैंट होना चाहिए ऊपर से नीचे। ओके, या ये चीज स्लैंट होनी चाहिए। मैं ना आपको दूसरे कैमरा से बताती हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। हाँ, परफेक्ट। Is this proper? या अभी प्रॉपर है, अभी प्रॉपर है। अभी दूसरी चीज, Okay. हाँ, दूसरे साइड को भी करेक्ट कर दीजिए। हाँ, ओके। अभी ओके मैम। आपका जो आपने जो चेस्ट के लिए सर्कल, ऐसे हाफ सर्कल बनाए हैं वो इरेज कीजिए। चेस्ट के हाफ सर्कल्स, हाफ कर्व्स, नीचे नीचे नीचे, चेस्ट चेस्ट लाइन ये ऊपर, उसके दो दो कर्व्स है ऊपर ओके एपेक्स पॉइंट दिस। के इधर। हाँ, दोनों इरेज करके स्ट्रेट लाइन में या डालिए। हाँ, आप कर्व मत डालिए क्योंकि कर्व से आपका गलत हो रहा है।
स्क्वेरिश लाइन डाली थी ना हमने, वैसे Only स्क्वेरिश लाइन डाली है। या एंड यस, ऊपर थोड़ा सा बंद कीजिए स्ट्रेट लाइन में। यस, हाँ, अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन में ऊपर बंद कीजिए, स्ट्रेट लाइन no, डालिए अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ। your voice is breaking, ma'am. I can't hear you. अंदर की तरफ ऊपर स्ट्रेट लाइन Hello. डालिए। हेलो सीमा जी, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो। ऋत्विक, हैव यू मेड द स्केच? आपने बनाया Yes, है? ma'am. फोटो भेजो, Yes, ma'am. फोटो भेजो। गलत होगा चलेगा, सीमा जी का भी काफी गलत है। आई एम गोइंग टू करेक्ट इट। मेल करो मुझे, व्हाट्सएप पे भेजो। Hello. हाँ सीमा जी, आपको मैं ये Yeah, चीज yeah. बता रही थी कि आपका जो स्केच है ना वो मेरे सामने है, और इसमें Okay. एक बहुत बड़ी मिस्टेक आपकी हुई है। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको जो मैं बता रही थी इनसाइड कर्व, मतलब मैं आपको दूसरे कैमरा में मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, दूसरा कैमरा, आई एम Yes, yes. स्पॉटलाइटिंग द कैमरा, उसमें मैं आपकी मिस्टेक्स मेरे इस पे बताती हूँ कहाँ कहाँ पे आपकी मिस्टेक है। तो जैसे मैंने आपको कहा, इसको सीधा Okay. लेके अंदर Okay. स्ट्रेट लाइन दीजिए, इसका मतलब आपको स्ट्रेट लाइन ये ऐसे स्ट्रेट करना है। दिस यू हैव टू डू। आपकी दूसरी मिस्टेक, पहली मिस्टेक हमने करेक्ट की कि हमें ये ऊपर का कर्व डालना था, जैसे ये ऐसा वाला कर्व हमने डाल दिया। अभी दूसरी मिस्टेक आपकी जो ड्राइंग में देख रही हूँ उसमें आपने यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट कर्व दिया है, काफी दिखने वाला कर्व दिया है। ठीक है, दैट इज ओके, ये भी आपका ठीक है, लेकिन आपकी गलती क्या हुई है, आपने इसमें डिस्टेंस बहुत कम रखा है। मेक अ ब्रॉड डिस्टेंस, ये बराबर है, इसको ब्रॉड करो। आपका जो स्केच है उसकी बात करूँ मैं, Okay. उसमें ब्रॉडनेस दिखाओ, मेक इट ब्रॉड। Yes, yes. ये जो डिस्टेंस है, Okay. Okay. हाँ शेप बराबर है, ये डिस्टेंस आपको बड़ा करना है। ठीक है, दूसरी चीज आपने बहुत बड़ी गलती ये की है कि आपको मैंने कहा था अब दोनों को कि शोल्डर 1 इंच है, वेस्ट 1/2 इंच है, एंड द हिप्स आर 3/4। आपने हिप्स को भी 1 इंच पे रखा है, तो वो आवर ग्लास बन गया है, इसके लिए आपका पूरा शेप बाहर चला गया है। Uh, एम आई राइट? आपने हिप से कितना बाहर लिया है? hip is 3/4, यस। और आपका ये hip. स्केच रहा यहाँ पे, 3. आपने हिप Yes. पे कितना बाहर लिया है? आपने हिप पे 1 इंच बाहर लिया है, जो इसमें पैरेलल है, ये गलत है। आपको हिप पे 3/4 यहाँ पे स्टॉप होना है, इसके लिए आपको पूरा शेप गलत चला गया। ये आवर ग्लास लेडीज फिगर लग रही है आपकी। Okay. तो हिप को आपको क्या It's करना है? 3/4. 3/4, यस। सेंटर Yes. से 3/4 बाहर, सेंटर से 3/4 बाहर। Yeah. Yes. आपका 3/4 है? मुझे नहीं लग रहा, ये मुझे बड़ा लग रहा Yes, है। ma'am. It's just a second. I'll keep the scale. हाँ, स्केल देके देखो। Yes, yes. The hip
हिप पोजीशन, राइट? हाँ, हिप पॉइंट से बाहर कितने हैं मार्क किया है आपने? It's 3 foot, ma'am. Wait, I'll turn my camera. हाँ, मुझे आपका ये लेवल एकदम सेम लग रहा है. दिस शुडंट बी सेम. इट शुड बी लाइक दिस. आप ऐसे लेवल चेक करो, ये लेवल कैसे आई है और आपकी लेवल देखो कैसे आई है. या फिर आपका जो वेस्ट है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा. Just a second, ma'am. I can't turn my camera. I mean, camera symbol is not showing here. ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो आप इधर ध्यान दो, इसमें आपका No, no, no. सिर्फ Okay, okay. हो गया. Just sorry. Yeah. It's done. Just a second. I'll turn it. Yeah. Okay. See, ma'am. Okay. Let me see. It's shining. Can you see it, ma'am? Little shine. The scale is shining. और आप भी बहुत. Yeah. नो, मैं एक्चुअली आपको करेक्टली दिखाने के लिए मैं मूव कर रही हूँ बार बार. जस्ट ए सेकेंड. अच्छा, आपको इसमें फिर क्या करना है मैं बताती हूँ. ठीक है. ओके, आई गॉट दैट. आपको इसमें सबसे पहली बात क्या करनी है, आपको आपका जो आर्म होल है उसको नीचे से जो लाइन है, चेस्ट की जो लाइन है उस लाइन से आपको बनाना है. ये जो है आपको ब्रॉड करना है. यहाँ आपको ब्रॉड लेना है. जब आपका ये साइज ब्रॉड होगा तब जाके ये बैलेंस होगा. और दूसरी चीज, मैम योर पेपर इज नॉट सीन. पेपर है? No, your paper is not seen. The thing which you are showing is not seen. Yeah, now I can see. Yeah. Okay. देखो, ये आपका स्केच है. आपको क्या करना है, मैंने जैसे कहा आपका ये ब्रॉडनेस जो है ये कम हो गया है, तो आपको इसकी ब्रॉडनेस सबसे पहले बढ़ानी है. तो इसकी ब्रॉडनेस आपको यहाँ से डालनी शुरू करनी है. यहाँ से, ये इसका कुछ काम नहीं है, ये हटा दो. ये जो ऊपर का सेक्शन आपने बनाया है ये गलत है. इससे कंपेयर करो. देखो मेरा चेस्ट लाइन कहाँ पे है, ये लाइन आपकी करेक्ट आ गई. आपको एग्जैक्टली डू द रेप्लिका. इसको रेप्लिका करो. या फिर एक सबसे बेस्ट काम आप क्या करो पता है, आप ट्रेसिंग पेपर लो, इसका प्रिंट आउट निकालो. ये जो फोटो मैंने आपको भेजी है इसका प्रिंट आउट निकालो ट्रेसिंग पेपर से. उसके ऊपर ट्रेस करके इसके शेप्स की पहले प्रैक्टिस करो. एक बार आपको इसके शेप्स की प्रैक्टिस तो आप ठीक से कर पाओगे, क्योंकि आपको ये देख के नहीं हो रहा है. तो सबसे बेस्ट आइडिया आपके लिए यही होगा कि आप ट्रेसिंग पेपर लो. ट्रेसिंग पेपर समझते हो ना, ये वाला. Yes, ma'am. So if I keep my tracing paper, मैं इसको अच्छे से ट्रेस कर लूंगी और इसको ट्रेस करके इसी के ऊपर I will draw the shapes. ऋत्विक, are you listening, right? ये जो आपको मैं भेज रही हूँ इसको आप प्रिंट आउट निकालो. प्रिंट आउट हार्डली इट्स लाइक, इसका फोटो का प्रिंट आउट, इट्स गेटिंग अ प्रिंट आउट इज अ वेरी इजी जॉब. इसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेके हाँ उसको ट्रेसिंग पेपर से अच्छे से ट्रेस करो. अभी तक क्या आपने जितने भी फिगर पहले के भी बनाए थे ट्रेसिंग पेपर से उसके ऊपर ट्रेस करके वंस यू गेट दिस शेप, ये ऐसे एक बेसिक भी आपको मिल गया. इसी के ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, इसी के ऊपर प्रैक्टिस करो. ये एक शेप मिलने के बाद इसको सेपरेटली निकालो और इसके ऊपर प्रैक्टिस करके करके इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो दूसरे पेपर पे. दिस इज द ओनली वे टू गेट द हैंग ऑन द शेप. ये ऐसे करोगे तो आपको डेफिनेटली एक शेप का आइडिया आ जाएगा. डू दैट ओनली. ओके मैम. ऐसे मैं आपको ओरली बताऊंगी ना तो आपको वो समझने में मुश्किल हो रही है. ट्रेसिंग पेपर इज द ओनली ऑप्शन. आई एम वेरी श्योर एक बार आप ट्रेसिंग पेपर से करोगे ना आप बहुत अच्छे से इसे कर पाओगे. Yes, ma'am. Sure, ma'am. I'll do that, ma'am. Do that and then I'm sure you will get it. Even woman का भी आपको जो किया है मैंने, जो आपको फोटो भेजे है ना, आप चाहिए तो उसको ट्रेस करो. कल के जो आपको पोजेस भेजे थे उसको ट्रेस करो, उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करो. जब तक आपको वो कंप्लीटली नहीं आता ना
तब तक आपको आपके मन को शांति नहीं मिलनी चाहिए। आपको वो चाहिए कि मुझे वो पोजेस आने ही है, मुझे वो शेप बनाने आने ही है, काफ कैसे बनता है, एंकल कैसे बनता है, जो भी जितने भी सारे बॉडी के शेप्स है उनकी कर्व्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये फॉर्मिंग अ कर्व इज सम लाइक दैट्स अ टेक्निक। ये अगर आपको अच्छे से जमे ना, मेल फीमेल, तो आपके इलस्ट्रेशन को ब्यूटीफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इट हैज टू लुक ब्यूटीफुल बिकॉज आपने सारे कर्व्स जो ह्यूमन फिगर के हैं अच्छे से अचीव किए हैं। मतलब आपकी जो ओके मैम, फीमेल ओके। फिगर है वो फेमिनाइन ही लगनी चाहिए, और जो मेल है वो मेल मेल की तरह ही लगना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ये यस यस। चलो अभी मुझे टेल मी वन थिंग, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट, एनीथिंग? No, nothing question, but I only want to ask, like today the session is getting over, right? या But as per our this thing, we are not completed our assignments properly. या So if we send you our assignments when we do it, would be that fine, or या it's या not? आपको It's अगले again. वीक में सारे असाइनमेंट्स भेजने हैं। यू हैव अ 1 वीक का टाइम ना? Okay, okay, ma'am. आपके पास Okay. पूरा इंटायर 1 वीक का टाइम है। उसमें आपको जितने सारे असाइनमेंट जो मैंने कहे थे अब तक के, वो सारे आपको असाइनमेंट उस वीक में भेजने हैं। Okay, okay, ma'am. Okay. ठीक है, एक बार असाइनमेंट भेज दोगे मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, और अच्छे से आप वो उसे वो आपको एक लाइफ टाइम के लिए एक एक्सपीरियंस रहेगा। एक तो आपका हाथ भी साफ हो Yes, जाएगा, yes. आपको कुछ गलतियां करोगे तो आप सुधार भी सकते हो। मुझे मैसेजेस पे भेजो व्हाट्सएप पे, मैं करेक्ट कर दूंगी। फिर जो भी आप असाइनमेंट भेज रहे हो उसके ऊपर टाइटल डालो असाइनमेंट। द Yeah. असाइनमेंट इज 10 10.5 हेड, 12 12.5 हेड, 9 9.5 हेड। काफी कुछ बनाना है, आपके पास सारा डेटा भी है, आपके पास फोटो भेजे हुए हैं 8.5 हेड। कुछ नहीं आता तो वीडियो देखो, वीडियो के सारे लिंक भेजे हैं, आज के वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो सब कुछ उसमें Yes. मेंशन्ड है। Okay, ma'am. Okay. ओके, सो दैट इज इट। अभी अपार्ट फ्रॉम दैट ये असाइनमेंट का एक हो गया, और कुछ आपको इस सेशन से रिलेटेड जितने सारे हमारे 12 सेशंस हुए हैं, असीमा जी स्पेशली मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपने पहले कहीं पे क्लासेस किए थे और आपने बेसिक सीख लिया है। तो आपको Yes. कंपैरिजन अगर कर कंपैरिजन नहीं बोल सकते, लेकिन आपको लगता है कि आपने जो पहले कहा था मैंने सीखा है और अभी आपने जो सीखा है, इसमें आपको क्या फर्क नजर आया? It's totally different. It's like जमीन आसमान का फर्क है इसमें. It was like if I haven't learned this, surely मैं इंटरमीडिएट लेवल में कुछ भी नहीं सीख पाती थी. If basic अगर मैंने नहीं किया होता, तो intermediate level would have been very tough for me. So that means you agree, right? Yeah, yeah. And all thanks to you for advising. I'm glad for that, और I really glad that आपने मेरी बात पे इतना यकीन किया and then you got yourself enrolled for this one. That is a big thing Yes, because I wanted to make sure that whatever promises I give, I keep up to that promises, and I really feel happy that students learn. That is what at the yes. end I want to see, that students are happy and they I are have learning. learned a lot. I have learned a lot. To be frank, a lot I have learned. That's really nice to know. चलो ऋत्विक को Actually, पूछते हैं। हाँ बताइए। yes, yes. No. That's what I'm saying. From basic, what we say, not till Z, but from A to till I think till K, L, we have came. यस हमें जेड तक जाना है। जेड के लिए आगे काफी स्टेप्स है, प्रो लेवल तक है वो। तो जेड तो अलग ही बात है, वो लेवल ही कुछ अलग है, वो काफी प्रोफेशनल Yeah, लेवल है। बट मैंने जैसे कहा था, yeah, अगर हमारा बेस क्लियर हो तो ही आगे जाके चीजें करने में आसानी होती है, नहीं तो बहुत स्ट्रगल करना yes, पड़ता है। सो अभी आपका yes, बेस yes. काफी हद तक क्लियर हो चुका है। अभी इंटरमीडिएट लेवल पे जैसे मैंने आपको बीच बीच में दिखाया था कुछ, जैसे सैटिन वेलवेट शिफॉन का मैंने आपको रेंडरिंग दिखाया था लास्ट सेशन में कि हमने इंटरमीडिएट लेवल पे क्या किया। अगर ये आप अच्छे से कर पाओगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। Yes, yes. गुड, वाओ, ऋत्विक हैज डन अ वेरी गुड जॉब।
ऋत्विक आपने अच्छा फोटो भेजा है, आपने काफी अच्छी प्रैक्टिस की है। आपको सिर्फ आपके इसमें ना मेजर एक ही चीज मिसिंग है, वो है आपका फेस का शेप। आपको जो हेड बनाना है, थोड़ा चिन को ना स्क्वायर स्ट्रेट लाइन में बनाइए, चिन को स्ट्रेट लाइन में बनाइए। ओके मैम। सीमा जी, मैं ना दूसरे कैमरा पे शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको Yes. ऋत्विक ने क्या बनाया है। चाहिए तो आपको मैं भेज देती हूँ रेफरेंस के लिए। बट ऋत्विक हैज डन इट आउट ऑफ प्रैक्टिस। ऋत्विक Yes, ने yes, काफी ma'am. प्रैक्टिस की है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस व्हाट ही हैज डन। Okay. होल्ड ऑन, आई एम Okay, जस्ट ma'am. Please शेयरिंग। share it, ma'am. या आई एम जस्ट शेयरिंग इट। You go. ऋत्विक फेस का शेप करेक्ट करके फिर से भेज देना, ये अच्छा किया है आपने। ओके मैम। ऋत्विका, मुझे कुछ दिन पहले फोन आया था रिगार्डिंग दिस मेल ड्राइंग कि मैम मैं कैसे करूँ इसको, वो शेप कैसे होता है, एंड आई फेल्ट गुड दैट ही इज एक्चुअली क्यूरियस टू नो कि कैसे करना चाहिए। सीमा जी, मैं आपको भेज रही हूँ, आप भी एक बार देख लीजिए। Yes. तो शायद ये ड्राइंग देख के आपको और आइडिया आ जाएगा। काफी अच्छे से उसने शोल्डर्स, हैंड्स काफी अच्छे से अचीव किए हैं। सिर्फ उसका फेस अगर ठीक से सुधर जाए। और दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट ऋत्विक, इन योर ड्राइंग जो आपने थाइस पे एंड काफ पे जो शेप दिया है ना, थोड़ा अभी भी फेमिनाइन लग रहा है। उसको थोड़ा ना रफ बनाओ, मतलब उसमें कर्व्स थोड़े अंदर बाहर करके निकालो, तो थोड़ा वो ज्यादा मैस्कुलाइन हो जाएगा। थाइस को थोड़ा ब्रॉड बनाओ, आई मीन टू से। ओके ओके मैम। थाइस को ब्रॉड बनाओ, और नीचे जो आपका काफ है ना, उसको ऊपर ब्रॉड और नीचे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करो, तो वो बराबर शेप आ जाएगा। मैं आपको इसमें दिखाती हूँ ऑन दिस कैमरा। नो देयर सम प्रॉब्लम है। एनीवेज, मैं इसी के ऊपर आपको बता रही हूँ कि ऊपर थोड़ा सा ब्रॉड रखिए काफ थाइस को, और नीचे स्ट्रेट लाइन लीजिए। फिर बाकी आपका शेप काफी अच्छे से आपको हुआ है। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड, गुड गुड गुड। सीमा जी, देखा आपने? Okay, ma'am. हाँ Hello. हाँ, बोलिए बोलिए Yeah. Okay. Can I ask you one thing? प्लीज। How was you have seen our works? We had been for such a long time in the same session. We were together. Actually, what do you feel about your students? How should we improve ourselves? Not on the only on the drawing. Were we proper? Were we harsh to you any day or any such thing? Oh ho, not at all. Touchwood, matlab, this is my experience being a faculty, being a mentor so far, that touchwood, none of my student has been very harsh, because uh, maybe ऐसे होता है ना, the way you treat others, the people treat you the same way. So मेरा जो बात करने का ढंग है, शायद मैं काफी सॉफ्ट बात करती हूँ, इसलिए स्टूडेंट भी मुझे जो कुछ चीजें पूछते हैं सॉफ्ट ही पूछते हैं। And even though they ask me 1,000 questions also, as a teacher I always feel that I should answer it, because student है तो student का काम ही है ना questions पूछना, और teacher है तो हमारा काम है उन्हें clear करना. So I never took anything harsh, and I never felt anything harsh about any student. In fact, you also, Seema ji, you've been such an obedient, and you are the one, you are like an example to all the students, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि आप सेशन में एक जान डाल देते हो। क्योंकि जब मैं अभी सिखाती हूँ तो मुझे इंटरेक्शन करके सिखाना काफी अच्छा लगता है, काफी वो लाइवली हो जाता है, काफी इंटरेस्ट आ जाता है। तो जब आप नहीं होते थे तो काफी बोरिंग हो जाता था कि पीपल हैव टू टॉक। ऋत्विक कैसे साइलेंट रहता है, बट जब व्हेन यू बोथ वर नॉट देयर, व्हेन सीमा जी, यू एंड लक्ष्मी वाज नॉट देयर, ऋत्विक वाज टॉकिंग। सो एक इंटरैक्टिव जो आप स्टूडेंट ने दिखाया है, इंटरैक्टिव मोड, that is unbelievable. That is how even student enjoy, that is how even the faculty enjoy. And you guys are very obedient, very particular. Whenever I've asked you to send the poses and send the whatever the assignments, आपने किया है, आपने कोशिश करके मुझे सेंड करने की सेंड किया है, so that is really appreciated from my side.
So Thank thank you you, so much for thank being you. such lovely students. I am going to miss you guys. Seriously, thank you so much for Same, being so nice. same here. Thank you for teaching us. Thank you for bearing us. Not No, no, only no. teaching, bearing. So Oh, yeah. So on this note, this is the end of our one level. हमने 12 yes. लेवल्स 12 सेशंस क्लियर किए हैं. 1 मंथ का हमारा ये कोर्स काफी हद तक अच्छे से हुआ है. एंड आई एम रियली ग्लैड, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस कि आपने काफी ध्यान दे के पढ़ा, ध्यान दे के you try to understand the subject very well, and that is what it is the winning situation. So thank you so much, Ridvik. Thanks to you too. um Ridvik. ऋत्विक is again muted. ऋत्विक और हमारी काफी बातें हुई कॉलेज में, क्योंकि ही इज बीन माय एक्स स्टूडेंट, लेकिन वो कॉलेज क्लासरूम में भी वैसे शांत होता था. यस ऋत्विक. ऋत्विक काफी शांत होता था और बाकी बहुत सारी लड़कियां उसके आजू बाजू में बैठ के उससे सीखती थी, है ना ऋत्विक? निशा, अपूर्वा, एंड काफी अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है क्लासरूम में. तो एक ही लड़का होता था, लेकिन वो सबके लिए काफी आइडल था. आपने उसका भी काम देखा होगा, काफी अच्छा काम करता है. Yes, yes, उसकी दुनिया yes. बस इलस्ट्रेशन है, उसकी दुनिया ही इलस्ट्रेशन है. Wow, that's हाँ good जी, to आप hear. भी वैसे ही कीजिए. आपको किसी चीज में एक्सपर्टी करनी है तो आपको उस चीज में पैशन डालना पड़ता है. तो आप काफी दिखा रहे हो पैशन, वैसे ही हमेशा के लिए कॉन्स्टेंटली ऑन रखिए. इसको अभी बिल्कुल मत छोड़िए प्रैक्टिस, क्योंकि अभी आपने जो Yes, सीखा है वो आपको आगे लेके जाएगा फॉर श्योर. दिस इज द yes, बेस yes, व्हाट यू हैव लर्नड. yes, yes. All right, then on this note, I wish you all a very happy and a prosperous Diwali. और अभी हम Thank you. will try and Same to you, ma'am. yes, enjoy your Diwali. Be safe, Ridvik. ज्यादा पटाखे मत फोड़ना. Be safe, okay? Pataki banned. Okay, ma'am. Ma'am, this time Pataka is banned. All right, I'm actually missing Lakshmi also. I wish she could be here, but it's okay. She's not there today Yeah. also. Yeah, so Yes. anyways, I'll put the happy Diwali message on the group. And guys, be safe, and love you all, and hope to see you Same soon. here, ma'am. Thank you for teaching us. It was a really very, very good session. Thank you so Happy much. to learn all this. Thank you, Seemaji. Thank you so much. Take care. Okay. And Yes, ma'am. yes, goodbye. Goodbye to you all. Bye. Bye, Seemaji. Ma'am, Bye, and Ritvik. yeah, for the intermediate level, you'll be on who'll teach us? You'll teach or any other mentor? That is still not decided, but I'm Okay. sure there would be, if at all I'm not there, there will be some quality faculty only. So don't worry about that. Okay, ma'am. Okay. All right. Okay then, guys. Yeah, yeah. Chalo. Happy Thank you, ma'am. Diwali. Yeah. Bye-bye. Happy Diwali, ma'am. Thank you. Bye. Bye.